You have to bear with me again, and both Raj and Kuldeep also have to bear with me again for the first time actually, but for you guys it's the second or third time. So I love doing this, guys. This is the best part of D2C Insider, to really sit with founders and chat about their work, their life, their journey, learnings, failure, challenges, and I think a lot of real stories come out. And I think I always feel that this inspires people around, because when you see people from outside, and you see success stories, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यार ये इसने तो बना लिया, यार कुलदीप ने तो बना लिया अन्वेषण, राज ने तो फोड़ दिया, यार हमसे क्या होगा, right? You are struggling, you are in that 0 to 1 phase. This room, guys, is all the founders building in the Elevate cohort, right? So I think we all have gone through it. You both have also gone through it. Starting up is very hard, right? So you always feel कि यार others are successful. Why am I not able to raise money or scale, or सब कुछ looks so sexy from outside, right? So I think these fireside chats are actually my way of bringing out the real journeys, and I think it inspires a lot of people. You can relate to it. You can feel that there is someone human sitting in front of you who also has the same anxiety and the same challenges and the same journey, and then you feel that yaar मैं भी कर सकता हूँ, right? If Raj can do it, if Kuldeep can do it, then anyone can do it, essentially, right? So I think that myth is broken, right? Because when you see folks on Shark Tank and all, you feel कि यार इन लोग तो सब मतलब rockstar लोग हैं, right? But I think, like I said earlier also, whether you are 100 crore or 1000 crore or zero, everyone has the same struggle, everyone has the same journey. There is no other way. You have to go through 0 to 1. You have to then go from 1 to 100 and then 100 to 1000. So there is no shortcut to entrepreneurship, right? And even repeat founders, by the way, now we are seeing a lot of repeat founders in D2C. तो वो वापस 0 to 1 तो करना ही पड़ेगा. It will not be, oh, I'm a repeat founder, so I can just hit a home run on day one, right? So yeah, so that is the reason I host this, because I love this, because I feel it brings out the real human angle, and I think we all see success and media covers success and everyone loves success, but the real journeys behind that success is what matters, right? So thanks a lot, Raj and Kuldeep. Welcome to D2's Insider, and thanks for taking out time on a Saturday evening with this audience. Thank you, sir. Absolutely, absolutely. Welcome, guys. I'm looking forward to this discussion. Uh, Both of you have built iconic brands in very short period. Anveshan pre-COVID and you post-COVID. Very different journeys, different categories. But I'm sure as founders, we'll have a lot of common learnings, and I would like to use this session to bring out some of those learnings and challenges, and we can keep it very interactive. We can open it up to the audience. We can take questions. So guys, don't worry. This is not a monologue. This is going to be like a chat between founders, and we are going to be very real here. To start with, if you can just maybe in 5 minutes tell the audience about your background and how did you start Beast Life and vice versa. Maybe if you can take them through your journey quickly, that would give some context to the audience. Hey guys, मेरी आवाज़ मेरी आवाज़ ही मेरी आवाज़ ही थोड़ी ज़्यादा बुलंद है, सॉरी. सो माय जर्नी, विल से, एज अभिषेक सर सेड, अगर हम कर सकते तो कोई भी कर सकता है. दैट इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज फ्यू डेज बैक ओनली आई केम हियर इन सेक्टर 44. मेरा पहला जॉब पॉलिसी बाजार में था सर. मैं कॉल सेंटर में था. सो आई वॉज कॉलिंग एंड सेलिंग इंश्योरेंस टू पीपल 14 ईयर्स आप ही बैक. फोन करते थे? उसके बाद से इज्जत बढ़ गई बहुत लोगों की. तो अगर हाँ, दैट्स ट्रू, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है. सो फ्रॉम देयर माई जर्नी स्टार्टेड. आई वर्कड इन फ्यू गुड कंपनीज लाइक मामा अर्थ, लाइक डॉक्टर मॉर्पिन, हाइफन एंड कैफीन. लर्न ओवर देयर कि ई कॉमर्स की जर्नी कैसे बिल्ड करते हैं. लर्न फ्रॉम लाइक समवन सेल्स मनी, एंड देन नाउ स्टार्टेड ओन ब्रांड विद माई को फाउंडर गौरव. Touchwood, things are great. We are building a Beast Life brand. It's a health and fitness brand. हम यहाँ पे protein, creatine and multiple supplements बेचते हैं. We are doing good overall. We are a 200 crore plus kind of a brand right now. Profitable build कर रहे हैं. That is one of the very good thing I believe in, that build profitably. That is the minimum which you can do, which you can try. So I think yes, that's all from my side. Amazing. So you don't necessarily need to come from. Can we have some water, guys? You don't need to necessarily come from pedigree, right? Started with call center, and then obviously not some brands. I think Mama Earth is an iconic brand in D2C.
So I think you definitely got some learnings from Mamaearth and caffeine you mentioned. But yeah, I think hard work is something no one can take away, right? So not necessarily that you have to come from Harvard. If you don't come from Harvard, you can do hard work, essentially, right? So great journey, and in a very short time, Raj. When did you guys start? It's this business 2 years. So in 2 years, you have done 200 crores profitably. 200 करोड़ का भी ARR हो गया, 240 करोड़ ARR. Got it. So guys, we'll come back on that and we'll understand from him what has he done so that you guys can replicate some of that. अगर 2 साल में 200 crore का brand बन सकता है profitably, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? Over to you, Kuldeep. Would be great. I think your journey has been very different. It's been a longer journey, and I think you guys started out of college, if I'm not wrong. After college. Right. Started back in 2020. Right. Right. Yeah. So first of all, thanks a lot, Abhishek sir, for inviting us. Almost 5 years ago, when we were starting out, we were doing like some 40-50 lakh rupees kind of a revenue, and I remember you invited us at one of the D2C event, and again, it feels so good that when in this short 5 years of time, like we have grown and we have built a lot of things because of which like you have invited. So thanks a lot. So I will start with my journey. So I am from a small village in Uttar Pradesh. It's called Hathras, and all my family members were into farming from many generation. And my dad was one of the first person who basically got a government job. So I got good opportunities. Like for the initial years, I was in my village, and later on, as we got promoted, we shifted to different cities. And eventually, I studied at IIT Guwahati, where I did my bachelor's in computer science, and that was the place where I met my co-founders Akhil and Ayushi. So all three of us came from. Ayushi is not here today. Yeah, Ayushi is not here today, but Akhil is with me today. खाली इवेंट ही अटेंड करोगे धंधा कब करोगे सही बात है So almost like 5.5, 6 years ago, at that point of time, we thought that how we can help farmers. So we were trying to understand in this space that what we can do. And at that point of time, we realized that कि इंडिया में जो भी आजकल हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं. लेकिन इंडियन कंज्यूमर्स अब अवेयर हो रहे हैं, उनको रियल असली खाना खाना है, जैसे हमारे दादा नानी पहले के टाइम पे प्रोवाइड करते थे. तो अराउंड 2020 के वक्त में सर कोविड चल रहा था. उस वक्त ही हमने डिसाइड किया कि आने वाले 5 से 10 सालों में कुछ ऐसी ब्रांड्स बनेंगी जो HUL, ITC, PNG को रिप्लेस करेंगी और रियल असली खाना कस्टमर्स तक पहुंचाएंगी. तो 2020 में हमने इस इनिशिएटिव के साथ शुरुआत किया अन्वेषण के साथ. 2020 से लेके अभी तक हमने लगभग 20 से ज़्यादा गाँव में फार्मर्स के साथ काम किया. अराउंड 15,000 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं. एंड वी आर ऑलमोस्ट cheers to that guys and we are almost dispatching like or touching 5 to 6 lakhs households every single month. So it has been a good journey, and honestly we have done a lot of things. बहुत roller coaster है, so maybe during the panel discussion I can maybe bring some more Yeah, stories yeah, I over think we would love to know about the roller coaster, and that's what is relatable, right? I'm sure it's never a honeymoon, right? बाहर से लगता है कि यार बहुत easy है, यार देखो अन्वेषण चालू किया, सही टाइम पे कर लिया, कोविड आया था, देखो बन गया. ऐसा होता नहीं है ना? अरे इसको तो गौरव के साथ बना लिया, देखो 2 साल में ब्रांड बन गया, इतना easy है, right? It's not that easy, obviously, and I've been lucky to be a very small part of Anveshan as an angel. angel investors. So thanks through that, these guys are going to make a lot of money for all of us, and Snehil also. Me and Snehil both invested together. So I've seen the journey, and I think amazing growth and amazing numbers, and I think more than business, I think it's also like you mentioned profitability, right? I think that's a baseline, but I think more than that, I would say that what you are doing is actually impact, right? And you just mentioned 20,000 plus farmers, who are working with Anveshan, right? That's like actual on-ground impact, right? So I think that's amazing. And coming from IIT and building something like this, I think all three of you come from IIT. Your batchmates, right? We were at IIT, then we joined Goldman Sachs. So all three of us worked there for 2 years, and then अच्छा. we started Anveshan. तो ये तो फ्लिपकार्ट टाइप की स्टोरी होगी ना कि दोनों अमेजोन में काम किए और वहाँ से निकल के दोनों ने कंपनी बना ली. सही है. Great. Mike? Okay. Yeah, he'll do better. So coming back, I think both the journeys are very different. One you can see, profitable, quick success, quick growth. The other you can see a longer journey in different sectors. I think we'll come back now we'll zero down on what is the secret sauce, what have been the learnings, what have been the challenges. I'm actually going off the script because इसमें बहुत सारे questions डाले हैं टीम ने, but I think इसका कोई फायदा नहीं है. हम अपने ऐसे ही बात करेंगे chill करके, and we'll open it up to the audience, right? Let the audience actually ask a lot of questions. But Raj, I know, it's your secret sauce, but
थोड़ा बताओ यार कैसे मतलब 2 साल में हाउ डू वी बिल्ड अ D2C ब्रांड व्हिच कैन स्केल सो फास्ट प्रॉफिटेबली? सर वो 2 साल नहीं है, वो एक्चुअली 12 साल है। मतलब आई टोल्ड हिम, अभी हमारी बात हो रही थी। सो गाइस आई वर्कड विद मल्टीपल ब्रांड्स एज आई से। आई वर्कड विद मामा अर्थ, आई वर्कड विद एमकैफीन, आई वर्कड विद डॉक्टर मॉर्पिन। आई वाज मैनेजिंग बिजनेस ओनली। सो मैं ई कॉमर्स को ही मतलब दिन रात देख रहा था। मैंने तब ज्वाइन किया था ई कॉमर्स जब ई कॉमर्स की लोग इज्जत नहीं करते थे। मतलब आज से 12 साल पहले, ठीक है। मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जो एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे, आज वो डायरेक्टर है। तो दे आर फ्रेंड्स विद मी, तो अब वो मेरी सुन लेते हैं, बिकॉज तब से हमारा रिलेशनशिप चल रहा है। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ आई हैव डन सो मेनी लर्निंग्स उन दोज 10-12 ईयर्स दैट इज़ गिविंग मी बेनिफिट। मे बी भाई ने कुछ ज़्यादा गलतियाँ करी होंगी बिकॉज उन्होंने शुरुआत की थी। वो कुछ गलतियाँ मैंने कम करी हैं बिकॉज मैं वो पहले कर चुका था मामा अर्थ में, डॉक्टर मॉर्पिन में, एमकैफीन में। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिग पार्ट एंड दैट इज़ आई विल से मतलब दैट इज़ द सीक्रेट सॉर्स ऑफ सक्सेस की। माई सजेशन वुड बी, आप जो भी बिज़नेस करने वाले हो उस बिज़नेस को थोड़ा अंदर से देख लो। अगर किसी के साथ मिलके देख सकते हो तो दैट विल बी गुड पार्ट फॉर यू। अनदर लॉट ऑफ मिस्टेक्स वी डिड, मतलब इवन आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ लर्निंग्स हमने बहुत गलतियाँ करी हैं इन बीस लाइफ। अभी भी हमें पता है हम कहाँ कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक ऑपरेशन इज़ वन थिंग, देयर ओवर देयर वी आर स्ट्रगलिंग अ लिटिल। वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो नाउ आई हैव हायर्ड फ्यू पीपल एंड व्हाट हैपन विद द स्केल इट कम्स, देन यू हैव टू बी इन अ फेज जहाँ पे आपकी टीम सेटल हो। अब हमने शुरू किया, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस हम कर रहे थे 2-3 करोड़ रुपए का। धीरे धीरे वो 5 आया, वो 7 आया, वो 10 आया, मतलब एकदम से 15, फिर 20, बिकॉज मार्केट अभी एकदम से बढ़ गई। मतलब सब लोग प्रोटीन बोलने लगे। मतलब आज के टाइम पे हर चीज़ में आपको प्रोटीन मिल रहा है, दाल चावल, एक्स्ट्रा प्रोटीन। सॉरी, मैकडॉनल्ड में भी प्रोटीन। हाँ, मैकडी में भी प्रोटीन आ गया। सो इट्स अ बिग हाइप नाउ। तो सही टाइम पे सही चीज़ करना, आई थिंक दैट गॉट अस बेनिफिटेड, नो डाउट इन दैट, बट वी वर्क रियली हार्ड गाइज। मतलब द सीक्रेट सॉस इज बेसिकली मेहनत। मतलब उसके अलावा कोई सीक्रेट सॉस नहीं है। yesterday I was in office, I was having a 102 fever, still I was in office. That is a success, that is a secret sauce, I will say. Amazing, amazing. So showing up is the secret sauce, right? You're not, you don't look very well today also. So thanks for coming here. And I hope you can get some rest on the weekend. अभी आपको थोड़ा सा 1 घंटा आपसे थोड़ा काम करवा लेंगे। जैसे जब आप इतना कर ही रहे हो तो ये भी करवा लेते हैं मुझे कल भी वेयर हाउस जाना है। आपसे। अच्छा, कहाँ पे वेयर हाउस आपका? अभी हमने नया एक वेयर हाउस लिया। मतलब आफ्टर सीइंग ऑपरेशन इशू बहुत सारे हो गए। पहले हमने वी वर्कड विद शिप रॉकेट, वी वर्कड विद अमीजा, नाउ वी हैव सेटिंग अप आवर ओन वेयर हाउस की। यार थोड़ी कम गलतियाँ होंगी शायद अब हमसे। Got it, got it. No, I think you captured it really well, right? The right time, the right opportunity, as well as the right effort. It's a combination of that, and obviously you have experience in doing this, so you have brought a lot of experience to it. Someone like Kuldeep and team, I think you guys do not have experience, so I'm sure you would have made a lot more mistakes. So why don't you tell the audience a bit about it? Top three mistakes. If Yeah, you I'll want to come to share. mistakes, but before that, I think a lot of our learnings have evolved over a period of time. As founders also, we have evolved the mistakes which we used to do earlier versus now. तो एक चीज़ जो मैंने सीखी है ऐसे अपनी इस जर्नी में कि सबसे पहला प्राइम मेट्रिक है खुश रहना है। ऐसे अगर हम ऐसे खुश नहीं है ना जो कर रहे हैं ऐसे, तो फिर शो अप करने का भी मन नहीं करेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का भी मन नहीं करेगा। तो ऐसे मेरे को समझ में आया कि जो भी पैशनेट लोग होते हैं ऐसे किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड या किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पे वो बहुत ही दिल से केयर करते हैं कि उस चीज़ को उनको सॉल्व करना है, आई थिंक वो अनबीटेबल होते हैं। ऐसे मे बी थोड़ा टाइम लग सकता है ऐसे, बट 110% निकलेगा ये कुछ ना कुछ। ऐसे हमारी जर्नीज में भी सर 2-3 बार ऐसा हुआ है जब कंपनी बिल्कुल बंद करने की कगार पे हम आ गए ऐसे, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ आ गया, कोई चमत्कार हो गया, कोई चीज़ हो गई। फॉर एग्जाम्पल 3 साल पहले लिटरली हमारे पास 2 मंथ का रनवे बचा था, फिर सडनली अमन गुप्ता सर जो हमारे इन्वेस्टर हैं उन्होंने शार्क टैंक पे हमें मेंशन कर दिया, और सडनली अन्वेषण की बात होने लगी हर तरफ। ऐसे जिनका एपिसोड था उससे ज़्यादा अन्वेषण को उसका वो मिल गया। तो मतलब ईश्वर कुछ ना कुछ दे ही देते हैं ऐसे, अगर आप सच में लगे रहो ऐसे। तो मैंने ये चीज़ सीखी थी कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है, एंड लाइक रियली यू हैव टू बी वेरी पैशनेट टुवर्ड सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, एंड लाइक इफ़ यू विल रियली बिहाइंड इट आप कर ही लोगे ऐसे कुछ ना कुछ। सो आई थिंक दैट वाज वन लर्निंग। देन सर हमने ना पहले डेटा को लेके इतने ऑब्सेस्ड नहीं थे, बट अब हम बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। लाइक ऑनेस्टली
अब हम ऐसे इंग्लिश हिंदी से ज़्यादा ऐसे डेटा में बात करते हैं, ऐसे किसी ने अच्छा किया बुरा किया, ये सब्जेक्टिविटी नहीं रखते ऐसे. देर आर वेल डिफाइंड KPIs एंड प्रोसेसेस फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन द टीम, एंड अगर वो KPIs हिट हो रही है तो आपने अच्छा किया, अदरवाइज कोई सब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी. तो वो भी आई थिंक हमने बहुत अच्छे से इवॉल्व किया है. और आई थिंक तीसरा तो पता नहीं, बट खुश रहना ज़रूरी है. आई थिंक ऑन द वे आप अगर दिल से कर रहे हो ना कुछ तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट हो ही जाएगा कहीं ना कहीं ऐसे वो चीज़. Awesome, yeah. I think it all ties back to the why, right? So I think you guys had a very clear why. You wanted to solve a problem, right? It was not just a business opportunity or D2C hot hai, yeah, whatever, right? Back then, your category was not even hot, right? No one thought that you could actually build something like this, right? So it was pure passion, which even protein, right? I mean, when you started, protein was not hot, right? Suddenly it has become hot, right? So I think it's also about getting lucky. I think a lot of it is luck also. Honestly. But only the prepared, the luck, favors the prepared, right? मतलब मैं मेरे को ऐसा लगता है कि लक एक दिन आता है मे बी 4-5 सालों में, लेकिन आपको हर दिन खड़े रहना पड़ेगा वो लक लेने के लिए ऐसे. तो अगर हर दिन Very आप true. मेहनत नहीं करोगे तो शायद जिस दिन लक मिल रहा होगा उस दिन आपको मिला ही नहीं फिर ऐसे. Superb, yeah. I think that's a great way of looking at life, looking at work. And like you said, if you don't enjoy it, you can't do it. So, yeah, I think it all ties back to the why, right? And on that note, I think most entrepreneurs give up when they're close to success, right? So, I think the why is the only thing which can keep you going and keep you centered. Like you said, 2-3 बार कंपनी बंद होने के सिचुएशन में थी, right? So I'm sure you guys must have thought कि नहीं यार ये तो करना है, right? So, and that is the difference between, I think pivoting is very cool nowadays, right? We all talk about pivoting, right? But sometimes pivoting is not that good, right? You have to stick on to something, right? And keep doing it and it will compound. So I think pivoting is also good, but not always, right? True. So if you have a vision, you have a certain clarity of thought, then why pivot? And just stick to it. Superb, superb. Maybe one more thing I would like to add to a lot of young founders. I think if you'll ask me, like today we are doing good. We are almost clocking 450 crores kind of annual Wow, revenue. superb guys. Claps to that. And if you'll ask me like what is your biggest strength, so I'll answer my team. Honestly, like our culture is like very important. Like each and every person who is in the team feels like that they are CEOs of their own functions and divisions. So like when you are starting up, your early set of team members who are going to build your early journey is like very critical. So we have to like focus very much over there. And I have seen that a lot of times that people take short-term decisions, which I feel is completely wrong. Like you should always invest thinking long-term perspective, that you're building a relation with somebody. Like a lot of time we try to do some hanky-panky things in a more short-sightedness, but I have learned that if you're able to find somebody who can be with you for a long time, who also resonate with you, I think those early team members are very critical in order to grow your, because आज तक कोई भी दुनिया में अकेले बड़ा नहीं बना है, हमेशा सेट ऑफ पीपल ही बड़े बनते हैं ऐसे. तो यू हैव टू फाइंड योर सेट ऑफ पीपल जिनके साथ आप मचाओगे और आगे ग्रो करोगे. Absolutely, absolutely. I think very core insights, I would say. At the same time, it's also about the why, because I again feel that if the why is aligned, then the team will also be aligned. And as founders, obviously, you guys start with a vision, and you saw something, but others also need to see that, right? जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक it's a tough journey, right? For सर मैं सच बताऊं तो बहुत बार अब हमसे ज़्यादा हम टीम को देख के मोटिवेट हो जाते हैं कि अगर ये लोग इतने पैशनेट कर सकते हैं तो फिर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें वापस हमारा रिचार्ज हो जाता है वो चीज़ों से. superb, you are blessed. What else can you want, right? And if founders are happy, the teams are happy. It's a vicious cycle, right? Superb. Raja, I wanted to ask you because specifically you have built a creator-led brand, right? And I think that's also a hot space right now. And there are very few examples. You are one of the key examples. तो उसमें कुछ बताओ यार secret sauce की. How does it work? Like is it like a creator can help you move the needle? What role Gaurav plays here? Does it actually lead to business or is it just top of the funnel? Eventually तो यार मतलब repeat का game है ना, तो I might buy one product because I like Gaurav. But after that, what happens? Like, do you actually, are you able to sustain that? So basically, you will any day get a jump start, no doubt in that. मतलब अगर आप अपना बिजनेस खोलोगे तो आपकी फैमिली तो खरीदेगी ना, वो 4-5 लोग 10 लोग तो खरीद ही लेंगे एक बार, उसके बाद नहीं खरीदेंगे अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो एनी डे अगर आप किसी क्रिएटर के साथ कर रहे हो तो उसकी रीच के हिसाब से आपको एक जंप स्टार्ट ज़रूर मिलेगा, बट दैट जंप स्टार्ट इज़ नॉट सस्टेनेबल. मतलब आपको 1 टाइम मिल जाएगा, 2 टाइम मिल जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगा. अब उसके बाद आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है
तो आपका रिपीट आता रहेगा, ठीक है. विद अस वी सॉ दैट इनिशियली, मतलब इनिशियली हमें बहुत सारे लोगों ने बोला ये चीज़ कि यार गौरव है इसलिए तुम्हारे ये नंबर हो रहे हैं. एंड इट वॉज करेक्ट ऑल्सो, मतलब नो डाउट इन दैट, वो गौरव की वजह से ही नंबर हो रहे थे. हमने पहले महीने कुछ 3 करोड़ का नंबर किया, फिर 2-2 करोड़ का नंबर करने लगे. एंड लिटरली ये 2 करोड़ पहुंचने में बहुत सारे ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा बर्न करना पड़ता है एंड बहुत सारा टाइम भी लगता है. बट हम, मतलब हमारा CM2 वो 30% था उस टाइम पे, क्योंकि कोई पैसा नहीं लगा था मार्केटिंग पे, जीरो मार्केटिंग थी हमारी, ठीक है. बट वो 2 करोड़ से आप 20 करोड़ तक पहुँचे जैसे कि यार वो तो हमने वैसे ही किया जो एक नॉर्मल ब्रांड कर रहा है, या जो अन्वेषण कर रहा है, या कोई और कर रहा है, कोई एनी अदर D2C ब्रांड. हमने मेटा पे ऐड चलाए, हाँ हमने अपना टेकॉस इम्प्रूव रखा, हमने टेकॉस बहुत ज़्यादा नहीं किया, मार्केटिंग हमने बहुत कम करी. वन थिंग विच आई लर्नड इन माई पास्ट, जो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा सबको, क्रिएट योर ब्रांड ऑन योर वेबसाइट, डिस्ट्रीब्यूट ऑन योर मार्केट प्लेसेस. सो पैसा मत खर्चा करो मार्केट प्लेस पे ज़्यादा. आई होप यहाँ पे कोई मार्केट प्लेस का बंदा नहीं बैठा है. तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग. खर्चा करो इंस्टाग्राम, मेटा, इन सब पे, और कुछ ऑफलाइन एक्टिवेशन कर सकते हो उस पर करो. सो यू विल सेव योर मनी ओवर देयर. सो वी स्पेंड लाइक वॉट लेस देन 7% मार्केटिंग ऑन ओवरऑल मार्केट प्लेस, एंड वी डू और 40% business from marketplace. Our overall marketing budget is less than 17%. The good part is उनमें से इनिशियली, अब जैसे मैं बोलूँ पहले साल हमने जो बिज़नेस किया उसमें बहुत बड़ा हाथ था गौरव की प्रेजेंस का, बीइंग प्रॉफिटेबल. सेकेंड ईयर जो बिज़नेस किया उसमें बहुत बड़ा हाथ था गौरव का, बीइंग प्रॉफिटेबल. बट थर्ड ईयर में अगर मैं उसकी कॉस्ट निकाल भी दूँ तो भी वी आर प्रॉफिटेबल. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. दिस इज़ हाउ वी हैव बिल्ड बिजनेस. सो क्रिएटर इनफ नहीं है. क्रिएटर आ जाएगा, क्रिएटर अपना काम करके चला जाएगा, उसके बाद क्या करोगे. एंड इट्स मोर लाइक कि आज के टाइम आप क्रिएटर ले भी तो सकते हो ना. लाइक यू कैन टेक एनी सेलिब्रिटी यू वांट एंड पे सम मनी. व्हाट वी डिड इन प्लेस ऑफ कि भाई हमने उस क्रिएटर को एक इक्विटी दे दी एक तरह से. जैसे अब हाइफन एज अ ब्रांड अगर बात करूँ, कुशा कपिला का अंडरनीट है, वो क्या कर रहे हैं. दिस इज हाउ इट वेंट. So yeah, so I think the question is actually कि like you said, the creator can give you a jump start. But उसके बाद जो पहला साल 2 साल जो आप कह रहे हो आपको जंप स्टार्ट मिला, तीसरे चौथे साल में ऐसा क्या करोगे so that that scale sustains? Because beyond the point, it's not the creator. See, it's a content game. I think everything is a content game right now. Everyone is doing the same thing. Same thing I mean by content पे focus. मतलब कौन कितने एड्स चला रहा है, कौन कितने अच्छे एड्स चला रहा है, कौन कितना अच्छा ROAS ला रहा है, कौन कितना दिख रहा है. एंड ऑफ द डे दैट वर्क्स. There is no rocket science in that. I think Anvesham might be doing the same thing. तो आपका सिंपल फंडा रहना चाहिए कि यू शुड बी फोकसिंग लाइक वेरी हाईली ऑन कंटेंट. आप क्या कंटेंट पे काम कर रहे हो. एंड उसके बाद सर मतलब बेसिक है. सी एवरीथिंग इज बेसिक. कुछ हम रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं एज अ फाउंडर. हमने कुछ अलग नहीं किया है. हाँ ऑब्वियसली प्रोडक्ट इज़ द की. प्रोडक्ट अच्छा बनाओ. प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं है तो फिर कुछ नहीं है. अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, एज मतलब करेक्टली सेट कि भाई प्रोडक्ट आपको प्योर चाहिए, आप प्योर बनाओ. फिर आप झूठ मत बोलो. लाइक वी से दैट वी आर ऑनेस्ट ब्रांड. मतलब 20 लाइफ में हम जो डाल रहे हैं वो बात पीछे लिखा हुआ है. वी डोंट से आर सेल्फ एज अ क्लीनेस्ट ब्रांड. वी आर नॉट द होल ट्रुथ. हम टेस्टीएस्ट प्रोटीन है. वी आर अ टेस्टीएस्ट प्रोटीन. लोगों को प्रोटीन चाहिए. इंडिया इज़ अ टेस्ट सेंट्रिक कंट्री, जहाँ पे टेस्ट लोगों को चाहिए होता है. टेस्ट के साथ प्योरिटी चाहिए. तो हमने क्या किया, टेस्ट के साथ प्योरिटी दी है. मतलब वी हैव रिमूव्ड ऑल अदर इंग्रेडिएंट्स. वी जस्ट पुट सुक्रालोज इन दैट कि टेस्ट रहे एंड साथ में प्योरिटी भी रहे एंड साथ में ट्रस्ट भी रहे, बिकॉज वी डू ऑल बैच लैब टेस्टिंग एंड एवरीथिंग. तो ये सारी चीज़ें रहें. तो आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाना है. आपको उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है सबसे पहले. उसके बाद बहुत बेसिक हैं सारी चीज़ें. यू हैव टू ब्रिंग गुड कॉन्टेंट. सही तरीके से ऐड चलानी आनी चाहिए. मेटा पे काम करो, गूगल पे काम करो. मार्केट प्लेस को कैसे लीड करना है, वहाँ थोड़े बहुत रिलेशनशिप चाहिए होते हैं, वो चल जाते हैं. एंड इन सम प्लेसेस लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे तो रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है. मतलब या तो आप अपने आप ग्रो करते हो. Got it. So you're saying a great product, like a good product, and then good content on top of it, and the initial jump start you get through the celebrity or the influencer, the creator, right? And that has led you to have that flywheel of being profitable and growing, you know, profitably and being able to scale that. सो मतलब मेरा कहना ये है कि मतलब इट्स नॉट लाइक कि यू हैव टू स्पेंड मच. अगर आपके पास क्रिएटर नहीं भी है ना, तो यार 2-3 करोड़ रुपए में ना वो क्रिएट कर लोगे. मतलब यू डोंट हैव टू बर्न मोर देन 3 करोड़ रुपीज़. वो पीपल आर थिंकिंग कि नहीं यार वो 50 करोड़ तो बर्न करने में लग जाते हैं.
मतलब इतने तो बर्न करने लग जाते, तो वो चीज़ मतलब आई थिंक वो माइंडसेट बन गया है इंडिया इकोसिस्टम का कि भाई अगर ब्रांड बनानी है तो बर्न करना पड़ेगा। आप कम बर्न में भी बन सकते हो, हाँ थोड़ा स्लो बनोगे मे बी, बट यू कैन। Brand is anyways a slow game. It's not a network effect business, right? So there's no reason to pump it and try, because the moment you stop that funding, the revenue will fall, right? It's not like a social network business where Yeah, the more people you have, the more people will come, मतलब right? इवन आफ्टर हैविंग दिस मच ऑफ बिजनेस, सो वी दिस मंथ जुलाई वी विल बी डूइंग व्हाट 24 करोड़ रुपीस नेट बिजनेस आफ्टर टैक्सेस। इसमें 13-14 करोड़ रुपए मेरा रिपीट बिजनेस है, Okay. जो मेरा रिपीट आया है। But is that a category level thing, or is there something specific you are doing? पासपोर्ट होता है Okay. हमारा 50% प्लस है, Category का क्या है तुम्हारा? 25% के आसपास। That's it. So you are doing 2x of the category. That is because of the कैटेगरी आई product. मीन बाय नॉर्मल ओवरऑल कैटेगरी की बात कर Obviously. रहा हूँ, एवरेज। So that is because of the product. So content and the influencer gets you top of the funnel, the first customer, and then product gets you the repeat. सी वेरी बेसिक, प्रोडक्ट हैज टू बी सुपर्ब नॉट ओके। सुपर प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट, पैकेजिंग की बात नहीं कर रहा मैं। पैकेजिंग लोग एवेलुएट कर लेते हैं, चलो ठीक है, किसी को अच्छी लगी, किसी को खराब लगी, टीयर 1 वाले को शायद थोड़ी नॉर्मलाइज लगे, टीयर 2 टीयर 3 को बहुत अच्छी लगे। अब मेरा बिजनेस, माई 30% बिजनेस कम फ्रॉम टीयर 3 प्लस टीयर 4। मतलब दे डोंट मच केयर अबाउट द पैकेजिंग पार्ट, दे केयर अबाउट द प्रोडक्ट पार्ट। Right, right. And they also care for value for money. Value for money, yes. So this is my saying. In India, if you are giving a reasonable product at a reasonable price, any brand can become 1,000 crore brand. It's very simple. Reasonable product, reasonable price. आप बना लोगे, बनाया है ना लोगों ने। जो traditional brands. ट्रेडिशनल ब्रांड है तो बिना फंडिंग के बनाया भाई। Right, 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 right. What do you say, Kuldeep, with your journey? Obviously, you have had a differentiated product. You were the first one to talk about natural and organic and direct to consumer, from farm to fork, basically, right? But I'm sure there's a lot of competition. There's a lot of people claiming a lot of things. You didn't have a celebrity. You didn't have that kind of head start. So how did you guys? What has been your playbook? How have you been able to win the consumer trust? And from a playbook point of view, in your category, how is the behavior and how is it different for you guys? Sure. So honestly, if I have to tell you in one word, for us that is focus. Like initially, like as founders, when we start something, maybe when we get initial success, we get overwhelmed with it, and then we try to launch so many SKUs. We try to do like so many things. So one thing like which we have learned is like focus is very very critical. Today, if I share you numbers, so in our A2G category, if you go to any platform, Blinkit, Zepto, Instamart, Amazon, Flipkart, we have roughly 35 to 45% market share consistently on each and every marketplace. So we just focused like on one product which was like ghee, and the second category which was like oil. So there was a time, sir, when we were doing a lot of other SKUs like spices, sweets, nuts, seeds, and then we realized that when you basically try to do too many things, your marketing budget divides, your focus divides, your team divides. So I think, especially like in your initial days, you have to be very very honest with your idea, and you have to focus on very specific few things. And one more thing I would like to add over here is like initially, like when you're starting up, I feel कि you have to be very honest with your idea. Like a lot of times we are so much obsessed with our idea कि ये तो best product ही है. बट जब आप असली फीडबैक लेते हो, 10 कस्टमर के पास जाते हो और वो सच में आपसे दोबारा खरीद नहीं रहे, स्टिल आप बोल रहे हो कि आपका प्रोडक्ट का रिपीट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो गलत परसेप्शन में नहीं रहना चाहिए. मतलब कस्टमर्स को सच में सुनना चाहिए और सच में फीडबैक पे काम करना चाहिए, एंड देन इस पे आगे बढ़ना. I think that's the job of any brand, right? कि कस्टमर को सुनो. बट लॉट ऑफ टाइम सर ऐसा होता है कि हम ऑब्सेस हो जाते हैं कि हम तो बेस्ट चीज़ ही बेचते हैं सर मार्केट. बहुत सारे ब्रांड नहीं करते, इज एब्सोल्युटली करेक्ट. मतलब मैं कुछ ऐसे मेरे फाउंडर दोस्त हैं, मतलब मैंने उनको बोला भाई ये, बोला नहीं नहीं बढ़िया ही है. फिर तो लॉन्ग टर्म तो कुछ नहीं बन सकता, राइट? If the customer voice is not being heard. अभी दिक्कत सर हमारे मतलब इंडिया में मैंने जो देखा है, ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स अपने आइडियाज़ को अपने बच्चों के लिए ट्रीट करते हैं. मतलब ऐसे तो ना वो उनकी खामियों को इतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, सो मे बी उस हाइंडसाइट में रह जाते हैं. वी यूज्ड टू गेट, मतलब आई यूज्ड टू गेट फाइट विद गौरव ऑन दिस एज ही सेड फोकस. दैट इज़ अ नेसेसिटी इन आवर कंपनी. मतलब अब जैसे हमारा ना मासेस में लोगों को क्या पसंद है, मीठा पसंद है. क्या पसंद है? मीठा. Okay. मतलब थोड़ा मीठा होना चाहिए. मतलब टीयर 1 में शायद हो सकते हैं वो 5% लोग जो फीकी चाय पीते होंगे,
ठीक है, बट 99% जनता तो सर मीठी ही पीती है ना। प्रोटीन पाउडर में क्या है, अगर आप जो अभी रिसेंट वाले ब्रांड्स देखेंगे वो थोड़े कम मीठे हैं, ठीक है, इसलिए वो मतलब उनको प्रीमियम बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है। तो गौरव को भी कम मीठा पसंद है, ठीक है, एंड वी यूज टू फाइट कि भाई मुझे ये पसंद है, आपको ये पसंद है। तो आई ऑलवेज से दिस, अपने लिए प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो आप, कंज्यूमर के लिए बना रहे हो। टेक फीडबैक फ्रॉम कंज्यूमर, हमारा एक पॉलिसी है एनपीडी का, हम कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं ना, पहले 100 लोगों को पिलाते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, अगर वो अप्रूव होता है तब हम बेचते हैं उसको। तो फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज मतलब ई करेक्टली सेड, एंड इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ी फाइट करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि यार ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है बट दूसरों के लिए अच्छा नहीं है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जैसे बताया कि 100 लोगों को टेस्ट कराते हैं, अब हमारी कंपनी में एनबीडी के मल्टीपल हेड्स हैं, मल्टीपल लोग कुछ कुछ करते रहते हैं और हर कोई अपने आइडिया के साथ काफ़ी ऑब्सेस होता है कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है, इसको हम 500 करोड़ का बना देंगे 2 साल में, सब ऐसे करके आते हैं। तो अब हमने बहुत सिंपल रखा हुआ है, हमारे D2C वेबसाइट काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट हम 1 टेस्ट लाख करके देख लो, orders- टेस्ट करके देख लो ऐसा। हम टेस्ट करते हैं, हम 200-250 अपने प्राइम कस्टमर्स को भेज देते हैं और उसके बाद कितने रिपीट आया वो असली मेट्रिक है। मतलब अब किसी की सब्जेक्टिविटी वहाँ पे रही नहीं है ऐसे, तो आई थिंक वही कि ऑनेस्ट रहना उस चीज़ के साथ एंड कस्टमर्स को समझना इज लाइक वेरी क्रिटिकल। And that's also the power of D2C, right? Because you can actually live test it with a cohort of customers, जो आप शायद marketplace में ना कर सको या offline ना कर सको. How much of your business will be D2C in both of your cases, if you don't mind, like roughly? हमारा 70-60% बिजनेस इज D2C। Okay. हमारा 30% के आसपास D2C। So even if it's 20-30%, I think it's a very strategic, channel, right? Because you can actually do. सो हमारा स्टार्टिंग से था कि पहले D2C बिल्ड करेंगे, देन मार्केट प्लेस पे अपने आप पिक आएगा। अब अगर मैं बताऊँ 6 महीने पहले तक हमारा मार्केट प्लेस वॉट 1.5 करोड़, आज वो 6 करोड़ है, विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, मतलब एनी क्या, मतलब बहुत कम पैसा लगाया हमने उस पर। तो D2C पे हम बिल्ड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप बनाए। सो आई हैव लर्न दिस फ्रॉम प्लिक्स। प्लिक्स के बारे में सुना ही होगा। Obviously. तो प्लिक्स के फाउंडर से मैं मिला था, उनसे मैंने ये चीज़ें सीखी। उन्होंने मुझे बताया उनका बिजनेस है कुछ 40 करोड़ के आसपास का ऑन मार्केट प्लेस, दे स्पेंड ओनली 3% मनी ओवर देयर, जस्ट 3%। उससे पहले तक मैं भी मार्केट प्लेस में 12-13% कर रहा था। इन 6 महीने में मैंने उसको 50% कर दिया, कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ग्रो कर रहे हैं बराबर से। So basically, D2C you are saying is for demand generation and marketplace is for demand fulfillment. सर मतलब एंड ऑफ द डे कंज्यूमर देख तो रहा है आपको इंस्टाग्राम पे ना, आप जो स्पेंड कर रहे हो एज अ फाउंडर, हमें ये देखना चाहिए कि हमारा स्पेंड टू टोटल सेल क्या हो रहा है। सेल कहीं से भी आ रहा हो, चाहे मार्केट प्लेस से आ रहा हो, चाहे वहाँ कहीं और से आ रहा हो, वो कहीं से भी आ रहा हो। So like for us, we honestly don't want to change the habit of a customer. अगर वो अपनी सारी ग्रॉसरी ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं तो मैं ज़बरदस्ती वेबसाइट से नहीं ऑर्डर कराना चाहता। Right. तो हाउ वी लुक एट इट इज़ अ अवेयरनेस चैनल, कि जब भी किसी कस्टमर को फर्स्ट टाइम इन्वेशन के बारे में बताना है, लाइक वी स्पेंड हेविली ऑन गूगल, इंस्टा, मेटा, एवरी मंथ वी एक्वायर like lot of customers and eventually they would go to like quick commerce or e-commerce and we are completely fine with it. Like अगर हम फर्स्ट, बिकॉज जितना आप मार्केटिंग, जितना आप कंटेंट अपने D2C के थ्रू दे सकते हो, वो आप मार्केट प्लेसेस या क्विक कॉमर्स के थ्रू नहीं दे सकते। True, I think there are a lot of nuances. I think, Raj, your category is very different, right? I think it's a very involved, high involvement category. जहाँ पे बहुत high repeat, like जो आप repeat भी ला रहे हो, right? So there are some categories where D2C, is a more native channel. नहीं, सो मतलब अगर मैं आपको बोलूँ मेरे कंपटीशन में किसी का भी D2C उनका 20% भी नहीं है, हमारा है, क्योंकि हमने शायद उसको ऐसा बिल्ड किया है। दिस इज़ व्हाट आई फील एंड आई हैव सीन माई कॉम्पिटिशन मेजरली, मतलब सो द कैटेगरी ऑफ अमेजोन इन प्रोटीन, इमेजिन कितनी बड़ी होगी आपके साथ, तो महीने में कितना बिकता होगा प्रोटीन अमेजोन पे? महीने का? सिर्फ 1 महीने में प्रोटीन। पता है भाई, I don't want to get the wrong number. 200 करोड़। 200 करोड़ बस। तो मतलब मोटा मोटे 300 इतना कैटेगरी ट्रैक कर रहा है। 300-350 कैटेगरी का है, 300-350 करोड़ का कैटेगरी है, 300-350 करोड़। हाँ 300 करोड़ का मंथली कैटेगरी अमेजोन पे। ओके, ह्यूज। प्रोटीन वाला आटा आ गया है। प्रोटीन आटा इट्स गेटिंग इट इन ब्लिंकिट दीस डेज। नहीं, आई थिंक दैट्स राइट। आई थिंक हाउ यू बिल्ड इट मैटर्स। हाँ, प्रोटीन टूथपेस्ट ऐसा नहीं आ भी सकता है। या नहीं, बट आई थिंक फूड एंड बेवरेज, मतलब जो डेली स्टेपल्स, लाइक यू आर इन स्टेपल्स कैटेगरी, राइट? स्टेपल्स आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट है फ्रॉम अ D2C लेंस, बिकॉज द कंज्यूमर डज अ बास्केट परचेज, राइट? तो वो
पहले ऑफलाइन में मॉडर्न ट्रेड था, जीटी था, अब वो क्विक कॉमर्स हो गया. You're not going to anveshan.com to buy one ghee basically, right? I think So वो अलग challenge है. best is quick commerce. मतलब But Yes. sir, I'll tell you an interesting fact. Almost 70% of our monthly revenue comes from repeat consumers. So it's not like only new customers would come and buy. There are like we have built our own app and we are roughly clocking 150 crore kind of a run rate just from our D2C website plus app. And most of it What is will like, be the split between app and website? now app would be 40% of that total number and 60% would be Wow, website. wow. So the thought is like all the repeat customers should be moved towards app where we can maybe Yeah, do makes more sense. bundling and Makes increase sense. AOV. Makes sense. Your AOV will go up. Your repeat will go up. I mean, imagine why will anyone? I mean, I was talking to Anurag Pilgrim, right? And उसका भी 40% business app से आ रहा है. And when he was launching his app, he had called me to say कि यार app का marketing क्या है, CAC क्या है, CPM क्या है. His thesis was CPM on app is cheaper, right? And that time I was also telling him कि यार क्यों कर रहा है, मतलब who's going to download your app, right? Why will anyone download Pilgrim app? And we just met a week back, and he was saying Abhishek 40% is coming from the app, and he's also saying the same thing कि I don't know why people are downloading the app, Even I also say this. है ना? कि कौन order कर रहा है यार, क्यों कर रहा है? so मतलब जब मैं मामाअर्थ में था, मामाअर्थ ने ऐप लॉन्च करी थी, तो सबसे पहले मैं ही था जिसने बोला था क्यों कर रहे हो लॉन्च, ज़रूरत नहीं है. मेरा आज के टाइम पे इस मंथ में 60% बिजनेस थ्रू ऐप, 40% थ्रू वेब. in your case, यस. you तो have हमने 4 महीने पहले लॉन्च किया था. 60% हम Are you incentivizing those users to buy from the app? लिटिल बिट समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम. Okay, that is the initial base which is shifting to app. But are you also acquiring new users on the app? Yeah, we acquire a lot of new users on the app, and we have created like few specific SKUs which are only available on app. So a lot of our new launches, जैसे मैं जो आपको बता रहा था कि 230 कस्टमर के साथ मेरे को कुछ टेस्ट करना है, तो वो सिर्फ वहीं पे आपको मिलेगा. तो उस टाइप की स्ट्रैटेजीज हमने किया हुआ है. And our AOV is much higher on app. Like our average AOV would be 2011, 2100, 2200, but on app it would be 27, 2800. Superb, superb. I think one big opportunity or trend which I'm seeing is Indian brands going global. And looking at Innovation, is that an aspiration or is there something you guys are already working on that? कुछ टेस्ट कर रहे हो उसमें? मतलब अगेन सर वही कोर लर्निंग की फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया बहुत बड़ा है और अभी इंडिया में ही बहुत स्कोप है अभी करने का. तो बीच बीच में बहुत बार हमने सोचा, जैसे एक बार हमने Amazon FBA में स्टार्ट किया एंड वी सेंड लाइक 2 कंटेनर्स एंड इट ऑल गॉट सोल्ड आउट विद इन लाइक 1 वीक काइंड ऑफ अ टाइम ओनली. बट उसमें बहुत सारे FDA कंप्लाइंस, पैकेजिंग उसी सबसे कंप्लाइंस food है ना, again. एंड इट्स फूड. सो वी थॉट कि पहला 1000-1500 करोड़ इधर ही करते हैं, उसके बाद फिर बाहर जाएंगे ऐसे. सुपर्ब, सुपर्ब. आपका क्या है प्लान, मतलब 1000-1500 यहाँ फिर वहाँ? सर अभी फिर सोचा वहाँ. नहीं है, यूएस यूएस नहीं सोचा अभी, तो इंडिया पहले कर Okay. लें ढंग से, फिर देखेंगे. I think one change I'm seeing, guys, is when we started the community, right? 100 crore was like the goal for everyone, है ना? कि 100 crore का brand बनाना है. And now I'm seeing so many founders like Saloni Try I met some time back, and मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कि यार 800 तो कर ही लिया आपने, अभी क्या है नेक्स्ट, मतलब बेचोगे अभी क्या है? She's like, what are you saying? Do you know the revenue? Abhishek, do you know the revenue of Cipla? And I was like, no. She's like 8,000 crores or something, right? Something like that, right? 30,000 crores, sorry. तो she's like, मैं तो अभी 800 करोड़ कर रही हूँ ना यार, अभी तो 30,000 करोड़ जाना है ना. तो I'm like, are you serious? She's like, हाँ, I've just done one category right now. अभी तो I'll do 5 more categories. Exactly. You know, so I think the ambition is what I'm talking about, right? The ambition in founders has changed drastically because of some minimalists and some of these exits happening. So now everyone is, obviously it's also a kind of people chasing a number and saying यार उसने 3,000 करोड़ किया, मैं 5,000 कर लूँगा, मैं 10, right? So I think that's just a thought, right? Why not? Why can't you acquire L'Oreal, right? वो उसने भी तो स्टार्ट ही किया होगा कहीं ना कहीं, right? So why can't Anveshan become that global brand? Why can't Beast Life become that global brand? And it's possible. हुआ है हमारे साथ, बीच में से एक दो बहुत बड़े नाम आए तो हमने कहा कुछ साल रुक जाओ, अभी आते हैं उल्टा घूम के. बिल्कुल 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 बिल्कुल. I think it's the power of the consumer end of the day, right? The consumer is choosing you over the traditional brands because your value proposition is better. Obviously the channel is, you know, just a way to launch, and that's the initial channel. Eventually you'll be, like you said, you'll be wherever your consumer is. So I think that is where it is coming from, right? Why all these acquisitions are happening is because of the consumer end of the day, right? There is an old school which does not understand this consumer. You guys understand this consumer. They would rather acquire you than let you take it over, right? So yeah, I think, you know, I've seen this journey of so many founders. Like you said कि यार पहले इवेंट में तू आया था, तू 40-50 लाख कर रहा था. Today you're sitting here. So I think this cycle, I think this is what is very interesting, right? This cycle has to fasten up, and more people have to build bigger and bigger. And not just because of a number, but because India should produce global brands, right? So I'm very interested to see in the next decade how does
our brands actually go global, and I think Anveshan has a fair shot at it whenever you have that bandwidth and whenever you have that focus. And with I think protein तो अभी तो ये wave चालू है. I think there'll be next wave of, I think creatine is coming in, and then fiber is coming in. There's so many things. I think wellness though as a space is going to explode, right? Crazy. So there's no upper ceiling to what you can actually build. Right? No. So yeah, I think that is what will inspire more people to build, and I think obviously Shark Tank has played a big role there. To open up the view for everyone and make startups cool. बहुत लोगों को EBITDA CM2 समझ में आने लगा है ना? हाँ. मम्मी पापा को भी पता है. Yeah. No, great guys. I think I'll open it up to the audience. We have a lot of time, so we'll take 7-8 questions at least. So go ahead, guys. If you have any questions from Kuldeep or Raj, this is the forum. Please raise your hand. Please introduce yourself quickly, and then you can go ahead and shoot your question. अच्छा भी आपको तो नहीं पूछना चाहिए. But I wanted to ask this from the very beginning. So, आपने Raj, this is for you. So you talked about how a creator is a delta in the first 1-2 years. But जो भी अभी build कर रहा है, almost every founder would want to onboard a creator, right? What are the no-goes? क्या नहीं करना चाहिए while choosing a creator? And second, once you have them on board, मतलब what is like this one thing that you should be very very careful about? So पूछ रहे कितना इक्विटी देना चाहिए. फालतू के इन्वेस्टर्स फालतू के इन्वेस्टर बोल रहा हूँ, फालतू के फॉलोअर्स. अब मैं कैसे बोलूँ? वो तो सारे ही. नहीं, मैंने आपसे पैसे लिए, सॉरी. नहीं, मैं बोला सारे ही वो होते हैं. सॉरी. सो फालतू के जो फॉलोअर्स हैं वो होना ज़रूरी नहीं है. मतलब फालतू के आई मीन भाई एंगेजमेंट रेट देखो सबसे पहले. सो if someone is getting a followership of 1 million, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैं जानता हूँ जिनकी 10-10 मिलियन की फॉलोवरशिप है, परचेज उनसे 10 भी नहीं आती. तो ऐसे इन्फ्लुएंसर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है. उनको आधी % इक्विटी भी मत दो, ठीक है. हाँ, जहाँ पे आपका इन्फ्लुएंसर ऐसा है जो ट्रस्टेड है, लोग उसकी सुनते हैं, लोग उसकी समझते हैं, लोग उसको जेन्युइनली फॉलो करते हैं, उसको देखो. तो अगर आप ये चेक कर सकते हो. सो ऑनेस्टली बताऊँ तो जब मैं गौरव को उतना नहीं जानता था. मतलब जब मेरे को वरुण ने प्रपोज किया, मैं वरुण के पास गया था. मतलब मुझे भी कुछ करना था हेल्थ एंड वेलनेस में. मैं मतलब आफ्टर एम कैफिन आई हैव सीन हाइफन एंड मेरे को हो गए थे 10-12 साल. तो मैं एक अपना एंजल राउंड उठाने गया था वरुण के पास. देन वरुण सजेस्टेड में कि गौरव से मिल. तो हम मिले, समझे, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया वो पूरा प्रोग्राम, ठीक है. उसके बाद 2-3 महीने तक मैंने इवैल्यूएट किया कि कितने लोग जानते हैं गौरव को, क्या सुनते हैं. मैं फ़्लाइट में जाता था तो पूछता था गौरव को जानते हो क्या, अपने बाजू वाले से. गौरव तनेजा फ्लाइंग को जानते हो क्या. तो मैंने इवैल्यूएट किया उस चीज़ को. मुझे लगा कि हाँ यार ये तो मतलब क्रेजी फॉलोइंग है. एंड इट्स नॉट जस्ट फॉलोइंग, पीपल ट्रस्ट हिम ऑल्सो. पीपल सी हिम एज एल्डर ब्रदर. बहुत सारे लोग नहीं भी देखते हैं, बहुत सारे लोग गाली भी देते होंगे ऑब्वियसली. बट हाँ, तो ये वाला एंगल थोड़े देखो. एंड किसी को भी मत ले लो. मतलब इट्स मोर लाइक, आज मैंने देखा है, मतलब मेरे बहुत सारे मुझे दोस्त बोलते हैं यार मुझे भी बता दे कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर मिल जाए. तो माय सजेशन वुड बी कि सी द एंगेजमेंट रेट्स एंड ऑल. एंड एंगेजमेंट रेट अच्छा भी है तब भी उसका जो कंज्यूमर है वो है कौन. क्या वो 100 रुपये की चीज़ खरीदने वाला कंज्यूमर है, क्या वो 1000 रुपये की चीज़ खरीदने वाला कंज्यूमर है. आपको ये भी देखना है. तो वो जो ऑडियंस है वो क्या है, क्या वो इतना अफोर्ड कर सकती है कि आपने 500 रुपये प्रोडक्ट लॉन्च किया वो खरीद सकती है, कि या फिर वो 100 रुपये वाला ही खरीद पाएगी. सो दैट यू ऑल्सो हैव टू फाइंड. It's not just engagement rate, it's the purchase power of the consumer of that influencers also. Got it. And the second thing, once you actually do bring someone on board, let's say not Gaurav but Kusha Kapila को जब लेके आए तो सबसे पहले what is that one thing that as a founder I should ensure I put it in the, let's say, the agreement, a fail safe of sort, because you're giving equity and this person becomes the mouthpiece of the brand. यार अगर वो आपको लिखना पड़ रहा है ना तो उस वैसे इन्फ्लुएंसर को लो मत. मतलब माय सजेशन वुड लिखना तो पड़ता ही है. माय सजेशन वुड नहीं लिखना. तो देखो, अगर आपको ये ट्रस्ट नहीं है कि वो इन्फ्लुएंसर कैसा है, उसकी नीयत कैसी है, तो यार फिर मतलब इफ़ यू आर हैविंग अ पार्टनर देन पार्टनर इज होम. मतलब यार ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ आप बिल्कुल सेफ फील करो. यू शुड बी ब्लाइंड ट्रस्ट. मतलब समवन यू ट्रस्ट विद योर मनी एंड वाइफ, दैट काइंड ऑफ अ पार्टनर. तो अगर वैसा नहीं है ना तो फिर शुरू मत करो डे 0 पे. हाँ, बाकी बेसिक कॉन्ट्रैक्ट तो देखो मतलब होने चाहिए, दैट इज़ फाइन. बट इफ़ यू हैव इवन 0.1% चांस किया ये बंदा गलत कर सकता है,
करो ही मत, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना शाहरुख खान क्यों ना कर रहा हो के साथ. got it. Thank you. और इक्विटी कितना देना चाहिए वो तो बताओ. So it depends मतलब what he's bringing on the table. If he's big enough, people have given 50% also. In the case of maybe Super U and Hyphen, you have heard मतलब 50-40, and in some cases it can be 30, 25, 20, 15. मतलब मैंने देख रहा हूँ अभी कुछ और ऐसे बट हो ये रहे जो हैं. लोग 2-3-5% वाला काम करते हैं इसमें आपको लगता है कुछ वैल्यू है मतलब डज द इन्फ्लुएंसर हैव एनी स्किन इन द गेम. Yes, in that case आपको उसके डिलीवरेबल समझने पड़ेंगे कि भाई वो दे क्या रहा है आपको. अगर मतलब सिंपल है मतलब अभी मैंने एक आई एम फॉरगेटिंग द नेम, लेटेंट समय रहना सॉरी. तो समय रहना की एक 0.06% इक्विटी है इन द बिजनेस ऑफ ये ओनली व्हाट्स नीडेड में. कौन किसमें. ओनली व्हाट्स नीडेड. अच्छा. तो अब आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन, बट दे हैव गिवन फॉर समथिंग. तन्मय भट्ट की है उसमें कुछ 0.6%. आई थिंक कुछ ना कुछ यूजफुल होगा. आई थिंक मतलब तो इट डिपेंड्स. शायद पैसा डाला होगा एंजल इन्वेस्टर. 0.6% के तन्मय का भी पैसा नहीं डालेगा. ओके गॉट इट. Thank नहीं you. मतलब वो फिर एंसिलरी हो गया ना, वो तो कुछ बन गया तुक्का निकल गया तो निकल गया राइट. इट्स नॉट अ एक्टिव रोल यू बट कैन. देखिए 2-3-4% पे मेरे ख्याल से दे सकते हैं. जस्ट आपका डिलीवरेबल वो होना चाहिए कि भाई दोगे क्या तुम, कितनी रील, कितने स्टोरीज, कितना क्या, कितने ईयर के लिए. अच्छा समटाइम्स ये भी हुआ है, अब हर्ड ऑफ इट, कि किसी सेलिब्रिटी ने ले ली, उसके बाद शेयर चले गए और वो फिर यूएस चली गई. या तो ऐसा केस भी होता है. तो एग्जैक्टली. बिवेयर ऑफ दैट ऑल्सो. या what about you, have you explored any celebrity faces and influencers. So almost like 30-40% of our content we only do as founders, but सही another है तूने बचा लिया इक्विटी. अरे भाई मैं ही इन्फ्लुएंसर हूँ. बट हम 30-40% इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी काम करते हैं ऐसे. एंड अगेन जो सर ने बोला कि आपकी ऑडियंस और उस इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस बहुत बाइंड करना बहुत ज़रूरी है ऐसे. जैसे यू वोंट बिलीव हम मिड एजेड मैन के साथ ही वर्क करते हैं मोस्टली ऐसे, और वो हमें बेस्ट आरओआई देते हैं ऐसे कंपेयर टू जैसे जो थोड़े फ्लैशी इन्फ्लुएंसर्स होंगे जिनकी ज़्यादा फॉलोइंग होगी. आप ऐसे नीशेस पकड़ सकते हो जिनकी कम फॉलोइंग है बट बहुत स्ट्रॉन्ग नेटेड फॉलोइंग है. तो हमारी टीम स्पेसिफिकली ऐसे लोगों को ही फाइंड करती है और उनके साथ मिलके कंटेंट बनाती है, सो दैट कि ब्रांड और वो इन्फ्लुएंसर दोनों रिलेटेबल लगे ऐसे. वो आई थिंक बहुत कोर मिनिमम है. got it. Great. Next question guys, anyone. Hello. Hi guys. Raj, this is a question for you. I would really love to understand how important was Shark Tank for you, and if it really brought you traction, growth. यार हमें थोड़ी किस्मत इस मामले में शायद उतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि ऐप सेंट्रिक था हमारा, तो उतना नहीं आ पाया जितना शायद नॉर्मल में आता. बट अब आई थिंक वापस से वेब पे हो गया तो बहुत आता है. मतलब शार्क टैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. That year it was only on the app. हाँ, दैट ईयर इज़ ओनली ऑन द ऐप. बट हमें फिर भी गुडनेस मिल गई थी बिकॉज हमारा जो यूट्यूब वाला था वो वायरल हो गया था. तो दैट इज़ वो वायरल बिकॉज ऑफ गौरव हो गया था. अगर गौरव ना होता तो फिर वो वायरलिटी भी नहीं मिलती, तो वो गुडनेस भी ना मिलती. बट हाँ एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, स्लोली डाउन हो रहा है. अगर आप सिंपल ट्रेंड्स पे जाओ और शार्क टैंक क्लिक करो, यू विल सी कि पहले साल यहाँ था तो दूसरे साल यहाँ, तो आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो आपको पहले दूसरे साल में मिला था वो आपको अब भी मिलेगा. बट ऑनेस्टली एज अ फाउंडर तो शेमलेस होना है. मतलब Yes, फ्री की true. मार्केटिंग कहीं भी मिल रही है तो पहुंच जाना है ऐसे. तो शार्क टैंक में जाना नहीं जाना, अगर मिल रही है अपॉर्चुनिटी तो सोचना ही नहीं है. मतलब बिल्कुल यार, आई थिंक एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी राइट. एंड व्यूज कितना आया पता नहीं, लेकिन एक क्रेडिबिलिटी तो बनी जाता है. हम भी यहाँ पे आके People know बैठे हैं ना you, भाई. राइट. हम भी यहाँ पे आके बैठे हैं ना आपके कहने पे, मार्केटिंग कर रहे हैं अपने आप. देखो सो नहीं आप उसलिए नहीं बैठे हो सर, वैसे ऐसी बात नहीं है. बट यू आर राइट. But you're completely right कि I think what just Kuldeep said, right? Because I see so many of these queries coming up. Founders keep asking, अरे अभिषेक आप इतनी बड़ी कम्युनिटी चलाते हो, आप इतने फाउंडर्स देखे, मैं शार्क टैंक में जाऊँ कि नहीं जाऊँ. मैं कहा भाई तुम पहले ऑफर तो लेके देखो. तुमने अप्लाई नहीं किया, तुम कह रहे जाऊँ कि नहीं जाऊँ. लेकिन अमन गुप्ता तुमको बुला रहा है कि भाई आ जाओ भाई शार्क टैंक में, राइट. आई एम सेइंग जाओ, ऑब्वियसली जाओ यार, अप्लाई तो करो. हु इज स्टॉपिंग यू, राइट. उसके बाद नहीं भी जाना है तो दैट्स योर चॉइस, राइट. बट दिस होल मेंटल मास्टरबेशन की जाए कि नहीं जाए एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. आई थिंक लॉट ऑफ फाउंडर्स आर वेरी हेजिटेंट to put themselves out, right? And if you're not able to put yourself out, how will you build a business? Completely fair. But sometimes it happens is Shark Tank is never in your control or is never in founders' control. Sometimes the narrative just goes haywire based on the founders that are there in front of you. So sometimes brand बनने के बदले बिगड़ जाता है. I think Fit and Flex was one of the stories that I've seen. So based on that, I'm trying to understand how
beneficial it is to go to Shark Tank because nothing is in your control at the end of the day. Sony TV के हाथ में to set the narrative, right? So that's where I was coming from. यार हमारा भी ना कोई बहुत अच्छा एपिसोड गया नहीं था, अगर सबने देखा हो तो, ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव, ठीक है. सी इफ़ यू आर बिल्डिंग इट इन अ बेटर मैनर, अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, आपकी थोड़ी मारेंगे, वो आपकी मारेंगे ना, कोई प्रोडक्ट की नहीं मारेंगे. सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. तो मतलब यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन द प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट सही है. अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ प्रोडक्ट ही हमारा वैसा है कि उस पर कुछ आ सकती है, कुछ बोल सकते हैं, तो फिर मत जाओ. दिस इज़ माई सजेशन. बट मेरे को लगेगा कि लाइफ ऐसी नहीं है जहाँ पे कहीं कुछ कंट्रोल में होता है. मैं भी वही बोलने वाला था. मतलब जैसे गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया, आपके साथ कुछ हो गया, कुछ वेयर हाउस में हो गया, तो ये तो चलता ही रहेगा. हमें हर एक सिचुएशन में अपना बेस्ट देना है ऐसे. तो आई थिंक अगर मे बी वहाँ पे हो सकता है सिचुएशन की हमारे लिए नेगेटिवली जाए, बट यही हमारा धर्म है एज एंटरप्रेन्योर्स कि वहाँ पे मचा के ही आना और बेस्ट आउटपुट ही निकालना है. गेस I think it's about the chances, right? So I think what you are talking about is one-off case, right? But most of, I mean, why will you want to assume or even expect that will happen, right? And even if that happens, I think it's fine. I mean, you do your best, right? But it's all about taking chances. Like in entrepreneurship, if you don't take chances, तो ऐसे तो मैं सोचूंगा कि मैं फंडिंग रेज करूँ कि नहीं. ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यार फंडिंग रेज करूँ कि नहीं. मैं कहा कौन दे रहा है तुमको टर्म शीट? कह रहे नहीं सर, ये बात ही नहीं किया मैंने. तो कहा भाई फिर तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम पहले 4 टर्म शीट लेके तो आओ, फिर बात करते हैं लेना है कि नहीं लेना है, राइट? तो आई थिंक देयर लॉट ऑफ, इट्स अ वैलिड कंसर्न, राइट? लॉट ऑफ पीपल हैव इनोवेशंस, बट आई एम सेइंग कि यू टेक अ चांस. आई मीन इफ यू डोंट टेक अ चांस, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग अ चांस, राइट? इट्स अ बिगर रिस्क, राइट? बिकॉज जब आपने स्टार्ट कर लिया तो आपने रिस्क तो ले ही लिया. क्या होगा अगर पिट गया तो दूसरा ब्रांड बना लेना. एक्सपीरियंस तो मिल ही गया ना. एंड ऐसा तो है नहीं कि आई थिंक शार्क टैंक इज नॉट, आई मीन इट इज नॉट स्क्रिप्टेड, बट they also prepare you. See, they also want TRPs end of the day, right? So why will they want something bad for you, right? There are very few cases where that has happened, right? But उसमें सही में एक वो आयुर्वेदा वाला कोई आया था ना जो फेक पूरा, तो उसके साथ वो हुआ. वो तो होना ही भी चाहिए. जैसे कह रहे कि यार प्रोडक्ट ही बेकार है तो आप जाओ ही मत, राइट? बट उतना कॉन्फिडेंस तो आपको होना चाहिए अपने प्रोडक्ट में. बट आई डू थिंक इफ देर इज अ 1% चांस ऑल्सो यू शुड टेक इट, राइट? If Elon Musk could take that chance on SpaceX and say there's a 1% chance, right? तो आपके पास तो ज़्यादा ही चांस होगा, आई एम श्योर. शार्क टैंक में तो 99% चांस है कि यू विल सक्सीड, राइट? इफ यू एक्चुअली इफ यू मेक इट थ्रू, मोस्टली द अपसाइड इज ऑलवेज पॉजिटिव. इवन इफ इट्स अ नेगेटिव पब्लिसिटी, इट्स in your case also, right? I mean, publicity is always good, right? Maybe, you know, if people have a controversy around you, that's good. It's better than being ignorant. I mean, no one talking about you at all, right? Let's say if you were ignorant anyways and now you go to Shark Tank and let's say a pit gay, so it's good, at least people are now talking about you, right? In a bad way, good way, whichever way. So yeah, who's next, guys? Anything? Go ahead. We'll come to you next. If you could also give a quick intro and then ask your question, that would be great. Hi, I'm Rajneesh, founder for Sach. So my question is for Kuldeep. First of all, amazing brand because I am into the same category, selling the same products. So whenever I talk to customers, my customers are using innovation. So wonderful brand. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि now let's say two questions. One is if you have to start again, right? What is that you will not do? Right, and what is that you will now do considering a lot of things have changed, ecosystem change hai, quick commerce aa gaya hai, all that. So I think one thing again what I have already talked about is focus. Like initially, like when we launched food brands specifically, I have seen a lot of brands like who are trying to get into same categories. They will try to sell too many SKUs. So I would say कि आप पहले प्रोडक्ट के साथ ऑब्सेस होकर एक प्रोडक्ट सही से बनाओ एंड फिर कस्टमर जब सच में उसको बार बार खरीदने लगेगा, रिपीट करने लगेगा, तो वो धीरे धीरे ट्रस्ट बनने लगेगा कस्टमर के साथ. फिर आप धीरे धीरे एक्सपैंड कर सकते हो, उसकी बास्केट बढ़ा सकते हो. सो आई थिंक वन थिंग इनिशियली वी ट्राइड विद सो मेनी SKUs एंड सो मेनी कैटेगरीज. लाइक देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू डू सीड्स, स्पाइसेस, तो वो सब हमने अब दोबारा मेरे को करना है तो शायद मैं एक ही प्रोडक्ट के साथ करना चाहूँगा, 2 कैटेगरी भी नहीं करना चाहूँगा ऐसे. एंड आई थिंक सिस्टम्स, प्रोसेसेस एंड डेटा, इसके अराउंड और ऑब्सेशन क्रिएट
जो मैं इनिशियली नहीं किया था बाद में किया, बट अगर अब मैं वो डे वन से वही रखूँगा। बहुत सारे जब आप स्केल करते हो तो लीकेजेस सिस्टम में बहुत सारे गैप्स ये सब होते हैं, बट अगर आप डे वन पे अगर अपना फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रखोगे, अपनी सप्लाई चेन बहुत स्ट्रॉन्ग रखोगे, प्रोडक्ट पे आप बहुत क्लियर होगे। जैसे ब्रांड लॉन्च करना बहुत ही आसान है, लिटरली मैं कल सुबह 4 और ब्रांड लॉन्च कर सकता हूँ। इनफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स भरे हुए मार्केट में जो आपकी ब्रांड लॉन्च करवा देंगे, बट फिर क्या ही फ़ायदा हो गया, एक और मीटू ब्रांड चालू हो गई। तो प्रोडक्ट में सच में कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए ऐसे। अगर वो प्रोडक्ट में अलग है तो भले अन्वेषण कहीं पे भी है आप पिछाड़ दोगे ऐसे। Makes sense, yeah. Go ahead. Hi, I am Nimisha. I'm building Habits. We are an oral care brand. My question to both of you is, for example, आप लोगों ने जब शुरू किया होगा, you would have started with a certain set of beliefs कि भाई ये category काम करेगी, ये product चलेगा, या ये channel चलेगा, या this is where I want to spend, etc. etc. Now that you've crossed that 0 to 1, 1 to 100 journey, what are the certain things जो as a founder you core belief में था आपके कि मतलब this is short work for me, but eventually it did not. It could be because of how it was implemented or market factors, etc., etc. But what are the few things that you started with the belief very strongly, but eventually it did not really work for you guys? सो फॉर अस हमने ना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था विच इज़ अ कॉल्ड रोटी प्रोटीन मिक्स। तो ऐसे सर का ना आटा आता है, पूरा कंप्लीट परफेक्ट प्रोटीन आटा आता है। तो हमने क्या किया, हमने एक मिक्स बनाया जो आपके घर के आटे में, आप घर में कोई भी आटा यूज़ कर रहे हो, नॉर्मल आटा, रागी आटा, जो भी आटा यूज़ कर रहे हो, उसका सिर्फ 2 स्कूप डाल दो तो ऑटोमेटिकली यू हैव नाउ इन योर रोटीज़ यू हैव मोर देन 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हमें लग रहा था बहुत क्रेजी चीज़ है यार, मतलब बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया हमने, मचा देंगे इसको। ठीक है, और बट अवेयरनेस ही नहीं थी लोगों के पास, तो हमें लगा कि बहुत अच्छा कर लेगा। और ये आई थिंक ये 0 to 1 के बाद की जर्नी है, मतलब हमने जब 5-6 करोड़ कर लिया था उसके बाद ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था। और मेरा बड़ा बिलीव था इस प्रोडक्ट पे, ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे लगता था बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि और ये प्रोडक्ट कैसे आया था, बिकॉज मेरे मम्मी पापा प्रोटीन पाउडर नहीं पीते, मैं उनको कितना भी पुश कर लूँ, ठीक है, उनको कितने बड़े डिब्बे दे दूँ बट वो नहीं पीते, तो वो कैसे अपना प्रोटीन पूरा करें। तो उसके चक्कर में हमने कुछ बात करी, कुछ लोगों से समझ में आया कि यार ये एक प्रोडक्ट है, इट्स अ हीट स्टेबल प्रोटीन। तो आप रोटी जैसे सेकते हो ना, आज मतलब कहने के लिए वो यूट्यूब पे कैसे भी सेक लो, बट घर पे तो आँच पे डायरेक्टली सेकी जाती है, तो प्रोटीन डीनेचर नहीं होना चाहिए। तो वो भी हमने सब पूरा क्रैक कर लिया, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया। बट हमें लग गया कि यार इसको ना मार्केट करने के लिए पैसा बहुत डालना पड़ेगा। ठीक है, डे वन से बहुत ही क्लियर थे कि बिल्ड तो पहले अपना प्रोटीन पाउडर ही करना है, तो पूरा एज ही सेड कि फोकस बहुत ज़रूरी है। तो हमने पहले प्रोटीन, क्रेटीन, ये दोनों चीज़ों को बिल्ड किया, हमने उसी पे पैसा लगाया। उस प्रोडक्ट को हमने ऐसे ही छोड़ दिया कि भाई ठीक है, अपने आप जो बिक रहा है बिकने दो, उसमें रिपीट अच्छा है तो हमें 10-20 लाख का सेल कर देता है, बट हाँ वो इतना बड़ा पिक नहीं कर पाया अभी, मतलब जब करेंगे पुश करेंगे उसको, बट हाँ मतलब दीज थिंग्स हैपन्स। मतलब इफ़ आई हैव टू ऐड, तो आप मुझे बताओ, कोई भी फाउंडर कुछ भी लॉन्च करेगा तो वो कभी बोल ही नहीं सकता कि ये नहीं चलेगा ऐसे। हमेशा हर एक इंसान को लगेगा कि ये तो मचा ही देगा, ऐसे मार्केट में चला जाएगा। तो जैसे मैं तुमको अन्वेषण के बारे में बताऊँ तो आपको, जब हमने 2020 में लॉन्च किया था तब कोल्ड प्रेस ऑयल कैटेगरी और ये प्रीमियम की कैटेगरी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, बहुत ही कम प्लेयर्स थे ऐसे। एंड तो अगेन मतलब आपको ना रास्तों में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ऐसे कि नई कैटेगरीज भी मिलेंगी, कुछ उसमें चैलेंजेस भी मिलेंगे ऐसे, बट वही है कि अगर आप ऑनेस्ट हो अपने काम को लेके और अपने मेट्रिक्स को लेके जो आप असेस करते हुए जा रहे हो, तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ता चला जाएगा। सडनली ऐसा कभी नहीं होगा कि एक दिन आपको पता चल रहा है कि कैटेगरी सही नहीं थी ऐसे। अर्ली साइंस आपको इनिशियली दिख जाएंगे। अगर आपने 100, 10, 20, 50 लोगों को भी वो प्रोडक्ट बेचा और अगर उनके साइड से वो रिपीट आ रहा है, उनको सच में वो प्रोडक्ट लग रहा है, तो वो आपको कन्विक्शन मिलती चली जाएगी। तो आई थिंक इट्स अ इवॉल्विंग जर्नी, नोबडी कैन से, मतलब जो भी इंडिया का बेस्ट मार्केटिंग हेड होगा या प्रोडक्ट हेड होगा वो नहीं बोल सकता कि अब आप ये लॉन्च कर दो और फिर ये चलेगा ही चलेगा। बहुत सारी बहुत अच्छी ब्रांड्स लॉन्च हुई हैं। आप सेलिब्रिटी के बारे में बात करते हैं, 82 ईस्ट करके एक ब्रांड लॉन्च हुई थी, दीपिका पादुकोण थी। अब दीपिका पादुकोण थी, उनसे बड़ी कौन है ऐसे, तो फिर चलना ही था वो ब्रांड, लेकिन फॉर सम रीजन चीज़ें नहीं हुई। तो आई थिंक ऑन द वे बहुत विजिलेंट रहना है ऐसे, उन KPIs, उन मेट्रिक्स, उन प्रोसेसेस को देखते हुए एंड ऑनेस्ट रहना। आई थिंक वहाँ से चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि इनिशियली बहुत कोर कन्विक्शन कम होगा, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। एक फाउंडर में हर बार एकदम फुली होना चाहिए कि यही बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा एंड फिर ऑनेस्ट रहना है डेटा के साथ, आई थिंक जो कस्टमर्स कह रहे हैं। आई विल ऐड वन मोर थिंग इन दिस, कंज्यूमर से जब आप फीडबैक लेते हो ना, तो जब सामने लोगे ना तो कंज्यूमर कुछ और बोलेगा और वेबसाइट पे कुछ और बिहेव करेगा। ये मैंने खुद पर्सनली देखा हुआ है कि जैसे जब हम जिम जाते हैं, कहीं जाते हैं ना, तो कंज्यूमर को 2-4 चीज़ें पिलाते हैं, वो बेस्ट वाला पिक करता है, ठीक है, एक्सपेंसिव वाला पिक करता है कि वो 4,000 रुपये वाला प्रोटीन पिक करेगा।
बट वो खरीदेगा आगे 2,500 रुपये वाला प्रोटीन। कभी भी आप पूछो कि केमिकल डालोगे अपनी बॉडी में, कोई क्यों बोलेगा कि मेरे को डालना है ऐसे, लेकिन खरीद रहे हैं वो तेल। मतलब लिटरली बता रहा हूँ कि कस्टमर बोलता कुछ और है आपके सामने, ठीक है, बट बैक ऑफ द डे उसे वो तो कोई देख नहीं रहा ना उसे, तो वो बिहेव अलग तरीके से करेगा। सो आज ही करेक्टली सेड कि डेटा, मतलब अब एक गुड लर्निंग मेरे पास पहले से क्या थी, बिकॉज आई वर्कड इन द पास्ट, मेरे लिए डेटा ही भगवान है। मतलब डे 1 पे मेरी पहली हायरिंग थी कंटेंट का बंदा, डे 2 पे मेरी सेकंड हायरिंग थी डेटा का बंदा। तो डेटा हमारा 0 डे पे हमारा डेटा पे इतना था फोकस थे कि 2 साल में हमने जो भी अचीव किया है जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, डेटा सेंट्रिक डिसीजंस, नथिंग एल्स। हम डेटा पे ही, मतलब डेटा पे ही हम काम करते हैं। मतलब मेरी कोई भी मीटिंग जो टीम के साथ होती है वो विदाउट डेटा होती ही नहीं है। Thank you. Amazing. Anyone else, guys? We'll keep it the last question for now. You just answered it. My question was कि content team should be, one should vouch for that thing. It should be in-house. Both of you, it's for both of you. Yeah, outsource initial phase. सर देखो, मतलब हमने तो इन हाउस ही बनाई है। मतलब इन्फ्लुएंसर टीम, मतलब सब कुछ इन हाउस है हमारा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टीम, कंटेंट टीम, हमारे फोटोग्राफर इन हाउस हैं, वीडियो एडिटर इन हाउस हैं। तो हमने धीरे धीरे करके बिल्ड किया है। पहले एक फोटोग्राफर रखा, हमने ऐसा बंदा रखा जो वीडियो बना भी ले, एडिट भी कर ले। तुम लोग सुबह वीडियो बनाओ, रात में एडिट करो। सो इट्स मोर लाइक दैट। बट हाँ, इन हाउस रहता है तो, बट इट डिपेंड्स। अच्छी अच्छी एजेंसीज भी हैं, बाहर भी रख सकते हो। बट हाँ, मेरा थोड़ा बिलीफ है कि इन हाउस चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से काम करती हैं। आई थिंक ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है। आपको हर टाइप के ब्रांड्स मिलेंगे, ऐसे कुछ होंगी जो 100% इन हाउस करके बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी, कुछ पूरा आउटसोर्स करके भी बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी। तो आई थिंक आपको कोर समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या कंटेंट आपके कस्टमर के लिए वर्क करेगा। ऐसे अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो नो डाउट 110% इन हाउस ही करना चाहिए। अन्वेषण में हम 95% कंटेंट इन हाउस ही करते हैं आज भी ऐसे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि स्केल करने के लिए आप आउटसोर्स कर सकते हो और आपकी मैसेजिंग डाइल्यूट नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आप आउटसोर्स कर सकते हो। और आज के ज़माने में परफॉर्मेंस चलाना वालाना स्टिल आप आउटसोर्स कर दो, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ कंटेंट ही है। इंटायर मार्केटिंग इज जस्ट कंटेंट। तो अगर आपका सबसे कोर चीज़ आप बाहर निकाल दो और अगर वो लोग उसका जस्टिस नहीं कर रहे हैं तो गलत है। तो मे बी इनिशियल डेज में तो खुद ही करना चाहिए उस चीज़ को। Thank you. Superb, guys. I think that's it for now, but I'm sure you guys will have more questions. You can maybe try and catch them here. Don't let them go, and you can catch them before they go. But thanks a lot to all of you guys, for the audience, for the wonderful interaction, and thanks again Kuldeep and Raj. I think very real conversations, and thanks for opening up all your learnings and playbooks and being very candid. And I'm sure a lot of founders here would go back and maybe tomorrow is like we do these events on Saturdays, so that Sunday you can just chill and think about it, and then Monday you can come back with a bigger ambition and a bigger vision, right? And it just let it sink in, right? सो फाउंडर्स का संडे सैटरडे नहीं होता गाइस। Exactly. मैं बोला संडे को सोचोगे ना, तो मंडे से तो आके टीम के साथ काम करना है, तो पहले सोच तो लो करना क्या है, राइट? बिकॉज मे बी यू आर थिंकिंग कि यार ये कैटेगरी नहीं बन सकती, मे बी यू आर थिंकिंग इट इन अ डिफरेंट वे, right? So I think these conversations just open up your mind, right? And just tell you what is possible, because it is real now. Someone is telling you कि ये मैंने किया है, right? Versus you just, I think a lot of stuff we read in media is also very PRE, right? तो उसको तो डिस्काउंट ही कर देना कि मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैंने ये बनाया, इसलिए मेरा ये पैशन है। ज़रूरी नहीं है कि वो है, right? That is something which you also come up with later on, right? But I think what we are chatting here is very real, and I hope it inspires all of us to think bigger and do better. And I think learning from others is the best way to learn, right? Experience is mistakes, right? So if you can avoid those mistakes and still learn from others' mistakes, then that is experience also, right? So yeah, thanks a lot, guys. Pleasure. Thank you, sir. Thank you Thanks so a lot much. for inviting. Thanks, मैं audience. अभी भी बस एक लास्ट चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि 2021 में जब मैं आया था तब मेरे को पास नहीं मिल पा रहा था, मैं रजिस्टर नहीं किया था ऐसे, तो मैं सर को बहुत पीछे पड़ा कि प्लीज़ मेरे को एंट्री दिला दो इवेंट में। I know. तो वहाँ से यहाँ तो हम बदल सकते हैं ऐसे लिटरली। Cheers to that, guys. I think that's what it takes. So I think Aman also keeps saying this, right? कि यार 2 साल पहले मैं यहाँ बैठा था, अब मैं यहाँ बैठा हूँ. So I think that cycle has to go on, and that should be the. I'm not saying the aspiration should be to come in on the stage. That's not the reason to build anything, but it is part of the output, right? If you build something good, people will value you. ऐसा नहीं है कि उस समय वैल्यू नहीं किया, उस समय वो एक्चुअली वायरल हो गया था इवेंट,
और पास था ही नहीं हमारे पास, वो फार्म हाउस पर जगह ही नहीं थी, तो वी हैड टू रैशन पासेस, राइट? तो एवरी कंपनी वाज वन फाउंडर ईच। दिया था मेरे को याद। I know. So yes, I think we tried our best, but I think what really matters is the audience, right? So they want you guys, and that's why you are here. So thanks a lot to the audience, and thanks to all of you for patiently listening it out. And I hope all of you can, benefit from this and take home something productive. So that's it, guys. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you so much, guys. Thanks a lot. A big thank you to Kuldeep, Raj, and Abhishek for such a candid and valuable conversation. Can you guys please stay back for 10 more minutes? Because now the moment our founders have been waiting for. It's the time to crown our Elevate Cohort 6 Demo Day winners. Our second runner-up. Yeah. Yeah. So our second runner-up is the team Alive. Abhishek, I would request you to please. Congratulations, Surbhi, Sanjay. You're the only alive here. Team alive. These guys. Come, guys. Projector. Let's give a round of applause for Alive. For our first runner-up, we have Habits. Congratulations, Nimisha and Ravi. Can we have a big round of applause for these guys? Now, finally, the winner of our Elevate Cohort 6. Any guesses? Guys, any guesses? Or any more names there? No other brands here who want to win this thing? So it's Misfits. Let's have a huge round of applause. Congratulations, Yash and Aditya.